میں ہوں عبید قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ 14 اگست جشن آزادی کے موقع پر FECHS جناح گارڈن کشمیر چوک سے کرنگ تک البدر انقلاب گروپ نے عظیم الشان ریلی نکالی۔ ریلی کی قیادت البدر انقلاب گروپ کے چیئرمین مرزا اقبال، امیدوار برائے صدر خالد محمود، امیدوار برائے جنرل سیکرٹری واجد نسیم شاہی، راجہ فرحان لطیف و دیگر نے کی۔ ریلی میں چودھری صبور آف تخت پڑی، راجہ مبشر، راجہ تیمور علی، چودھری عمر، رمیز سدھو، حفیظ اللہ عباسی، چودھری عاشق، نور سلطان سمیت ووٹر سپورٹرز کی بڑی تعداد شریک تھی۔ کرنگ ٹاؤن پہنچنے پر ریلی کا شاندار استقبال چودھری امانت علی گجر، عبدالرؤف ستی، ملک عمران آوان، عارف گل، سابق UC چیئرمین، ملک اخلاق احمد آوان، صدر انجمن تاجران PWD چودھری ریاست علی، نعمان چٹھا، راجہ عبد الوحید، بلال عباسی، محمد عاطف، چودھری ظہیر، مبشر احمد، راجہ ظہور، راجہ شہزاد محمود، چودھری محسن گجر، راجہ عتیق الرحمان، چودھری اشرف شاہی، چیئرمین کیسر، چودھری سرور، شوکت مغل، سابق کونسلر چودھری سہیل احمد خان، حافظ عبداللہ، بابر جاوید، شان علی گل، ملک خالد محمود، ملک ماجد، ملک حماد مظہر، خالد ستی، زاہد محمود، مرزا عزیز حیات، محمد آصف، عثمان طارق، محمود شاگردری عامر، فیصل شاہی، عبداللہ ظہیر سمیت معززین، ووٹر سپورٹرز نے کیا۔ عظیم الشان ریلی نے کرنگ ٹاؤن لگایا، بعد ازاں کاٹنگ جلسہ عام میں تبدیل ہو گئی۔ جلسہ کا آغاز کیک کاٹ کر کیا گیا۔ عظیم الشان جلسے سے راجہ اعجاز، سابق UC چیئرمین ملک اخلاق احمد آوان۔ یہ جو آج کل ہمارے ٹونوں میں یہ پانی کی لالچ، یہ کاموں کی لالچ دی جا رہی ہے، یہ سیاست اب تو بلدیاتی الیکشن میں بھی نہیں چلتی۔ یہ سیاست آپ دور دراز کے جو دیہات ہیں، آپ کا انٹیریل پنجاب، سندھ، بلوچستان، وہاں پر بھی لوگ باشعور بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو الیکشنوں کے دنوں میں آ کر پانی یا کوئی کام کرتے ہیں وہ الیکشنوں کی لالچ میں ہی کرتے ہیں۔ اگر کسی کو اتنی ہمدردی ہوتی تو آج یہ پانی کی کمی کیوں ہوتی جو 14 سال مسلط رہے ہیں۔ ملک انعام الحق ممبران سے گزارش ہے کہ 21 اگست کو گھروں سے نکلیں۔ یہ آپ کی ووٹ کی طاقت جو ہے انشاءاللہ اس مافیا کا یہ آخری الیکشن ہے، اس کے بعد یہ مافیا انشاءاللہ اگر آپ گھروں سے نکلے تو یہ گھر سے نہیں نکلے گا۔ دیکھیں آپ کو جو 14 سال سے جو مسلط تھے آپ پہ، آج پھر وہ داڑیاں رکھ کے ادھر آ گئے ہیں۔ یہ عوام باشعور ہے، سب جانتے ہیں ان کو یہ کون لوگ ہیں۔ یہ شرافت کا لبادہ اڑ کے آ گئے ہیں۔ کرنگ ٹاؤن سمجھ لیں کہ ایک گاؤں ہے، یہ پرانی آبادی ہے سب سے یہاں کی، سارے بندے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ انشاءاللہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ انشاءاللہ 21 تاریخ کو کرنگ ٹاؤن اور جناح گارڈن کی غیور عوام نکلے گی، البدر انقلاب کو کامیاب کرائے گی۔ السلام علیکم۔ پروفیسر شیخ اطہر، امیدوار برائے جنرل سیکرٹری واجد نسیم شاہی اور البدر انقلاب گروپ کے چیئرمین مرزا اقبال نے خطاب کیا۔ ہمارا 21 اگست انشاءاللہ اتوار کو ہے اور بالکل فتح، وجہ صرف ہے کہ خلوص نیت اور اتفاق، ہم بہادری میں ٹیپو سلطان بنے، ولید کی تلوار بنے، فاروق کی للکار بنے، ہم نغمہ گری میں فردوسی بنے، ہم ساز بنے تو بلے شاہ، ہم سوز بنے تو وارث شاہ، ہم اہلیان کرنگ ٹاؤن و جناح گارڈن کے لیے البدر و انقلاب بنے، ہم اس کوچے کو آباد کرنے کے لیے مرزا اقبال اور واجد شاہی بنے۔ میں یہاں پہ دعوت خطاب دوں گا اس درخت کا نام جس کی صبح سالاری میں شاید وہ تعریف اس رب باری تعالیٰ کی ہے، وہ شخص جس نے لوہا منوایا، جس کو لیگلی تم نے ڈسکوالیفائی کرانے کی کوشش کی، جن کو ہر محاذ میں تم نے چاہا، لیکن اس کے پیچھے اس کے رہائشی، اس کے فائل فیکٹری،
इसके स्कूटरान मौजूद है और इंशाअल्लाह वो इज्जत और जिल्लत सिर्फ आपके हाथ में है। और फिर आगे कहता है कि मैं तो 1 करोड़ इंतजामिया को दे आया हूँ, टेंशन ही ना लो, पूरी इंतजामिया मेरी जेब में है। कोई कहता है वोट नहीं दोगे तो घर से उठा लेंगे, कोई कहता है अगर वोट नहीं दोगे तो तुम्हारे प्लाट कैंसिल कर देंगे, कोई सिर्फ इल्ज़ाम की सियासत करता है, कोई ये कहता है कि जी हम बहुत नेक थे, हमने इस टाउन को बनाया। मैं कहता हूँ इस टाउन को बनाने वाले नज़ीर भट्टी को मेरा खराज तहसीन है। नज़ीर भट्टी ने इस टाउन को बनाया और मैं वाकई उस शख्स को सल्यूट पेश करता हूँ जिसने इसकी डिज़ाइनिंग की, इसके अंदर हर कमर्शियल के सामने बेहतरीन पार्किंग छोड़ी। आज हम जहाँ बैठ के बात कर रहे हैं ये भी उस नज़ीर भट्टी की मरहूने मिन्नत है, और इन कमर्शियल के पीछे भी एक बेहतरीन पार्किंग की जगह मौजूद है, तो ये भी उस नज़ीर भट्टी की मरहूने मिन्नत है। हर शख्स सियासत में बुरा नहीं है, उसके काम अच्छों को हमेशा लोग याद रखते हैं। मैं आज नज़ीर भट्टी साहब को यहाँ खराज तहसीन भी पेश करने आया हूँ और उनको ये यकीन दिलाता हूँ कि जो ख्वाब वो अधूरे छोड़ कर गए थे इंशाअल्लाह वो ख्वाब हम पूरे करेंगे। आज भी मेरे कुछ भाइयों ने पिछले दिनों मुझ पर तनकीद के लिस्टर चलाए कि कुछ लाइनें पढ़ रही थी, तो मैंने साबका MC जो मेजर आफ्ताब अहमद कुरैशी साहब की थी उसमें एक शख्स इरशादुल्लाह तारड़ जिसका नाम था, मैंने खुद देखा उसको कि वो सुबह शाम उस पानी के मसले के लिए कभी किसी के साथ झगड़ रहा था, कभी वो किसी की मिन्नत कर रहा था, कभी वो किसी के तरले कर रहा था। वो सुबह रेलवे के मुलाजिमीन के पास जाकर रेलवे से लाइन की अप्रूवल ले रहा था, तो कभी जाकर जिम्मेदारों की मिन्नत कर रहा था कि दरिया के किनारे हमें ट्यूबवेल के लिए नई जगह दें, कि जो ट्यूबवेल पहले चाहे मौजूद थे उनकी पानी की गुंजाइश कम हो चुकी थी। तो इस शख्स ने 2 कनाल ज़मीन नई परचेज की दरिया के किनारे, 2 कनाल नई जगह परचेज की और वहाँ पर 3 नए ट्यूबवेल इस शख्स ने लगाए और दिन रात एक करके उस लाइन को जो 3 किलोमीटर पर मुहित थी, ये सुबह शाम कभी एक जगह पर रुकावट आए, कभी दूसरी जगह स्टे आए, कभी तीसरी जगह मसला बन जाए, कभी एक शख्स आके कहे मैं यहाँ से लाइन नहीं गुजरने दूंगा, कभी दूसरा कहे लाइन नहीं गुजरने दूंगा। ये सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद यकीन माने कभी एक की मिन्नत कर रहे होते थे, कभी दूसरे के पाँव पड़ रहे होते थे कि यार नहीं, मैंने वादा किया है करम के लोगों को पानी पहुँचाने का, जो पानी की कमी है उसको दूर करने का। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जी। तो मैं उन्हीं के बिहाफ पे ये बात कर रहा हूँ कि वो जो इरशादुल्लाह तारड़ साहब ने लाइनें अप्रूव करवाई, उनका पानी अंडरग्राउंड टैंक बनवाया, जहाँ पर गागड़ी के अंदर पहले 4 ट्यूबवेल लगे हुए हैं, वहाँ इन्होंने एक बड़ा 20,000 गैलन का एक बड़ा अंडरग्राउंड टैंक बनाया। उस टैंक को कंप्लीट हो चुका था, लाइनें कंप्लीट हो चुकी थी कि इसी तनाज़ुर में इस मैनेजमेंट कमेटी को हटा दिया गया और इनका ये मंसूबा अधूरा रह गया। आज AC ज़ुफ़रुल मलिक साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे ख्याल में ये पहले एडमिनिस्ट्रेटर होंगे कि जिन्होंने नामुकम्मल मंसूबे को लोगों की भरपूर डिमांड पर मुकम्मल किया। मैं उस दिन वहाँ पर वल्लाह ये नहीं कहने गया कि ये काम मैंने करवाया, मैं तो खराज तहसीन पेश करने गया कि हमारे मसाइल कोई भी हल करे। हम कहते हैं जी मुआविन ग्रुप करे, हम उनको भी सल्यूट पेश करेंगे। तो ज़ुफ़रुल मलिक ने हमारे मसाइल को हल किया, जो पेंडिंग चीज़ें रह गई थी उन्होंने कुरान की लाइन को जिना की लाइन से अलग किया। जो नए 3 ट्यूबवेल तारड़ साहब की मैनेजमेंट ने लगाए थे, उन तीनों का पानी इस वक्त कुरान टाउन में शामिल हो चुका है। इसका पूरा क्रेडिट तारड़ साहब की पूरी कमेटी को, इनकी टीम को जाता है और ज़ुफ़रुल मलिक को कि जिसने महदूद इख्तियारात के बावजूद भी इसको मुकम्मल किया। खाली कुछ पाइप जो सोसाइटी ने खरीद रखा था, वो खाली कोई 200 फुट पाइप देकर किसी ने कहा कि ये काम हमने करवाया है, तो मैं ये वज़ाहत देना लाजमी समझता हूँ। जिसको ये क्रेडिट जाता है, वो ज़मीन खरीदी, रेलवे से अप्रूवल ली, 3 किलोमीटर की पानी की लाइन डाली, पूरा प्रोजेक्ट इनिशिएट किया, तमाम अदारों से अप्रूवल ली, लोगों से लाइन की अप्रूवल ली, वो है इरशादुल्लाह तारड़ साहब। मैं उनको फिर एक दफ़ा से खराज तहसीन पेश करता हूँ। लेकिन इससे पहले स्टेज पे खड़े होके या आप कैंडिडेट तमाम ये कान खोल के सुन ले, मैंने वादा किया था 2 से ढाई महीने के अंदर
हेड ऑफिस जिन्ना गार्डन में शिफ्ट होगा, इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली मैं नहीं होने दूंगा। अगर ये चीज आप करेंगे तो सबसे पहले इन भाइयों के साथ मैं खड़ा हुआ। आप तो कुर्सी पे बैठे होंगे, क्या ये आपके गुलाम है कि बाहर आके खड़े हो, यहाँ से 20 किलोमीटर का फैसला तय करके वहां जाए? मैं इससे कभी इत्तेफाक नहीं करूंगा। मेरा सरेआम खुला इस बात का ऐलान है कि जो मैंने स्टेज पे खड़े होके मेरे नेमल बदल खालिद महमूद एज ए प्रेसिडेंट इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं इनको भी अभी इनके कान खोल देना चाहता हूं कि कोई वो कमिटमेंट जो मैंने अपने मंशूर में की हुई है, आप कभी उसको अगर चेंज करेंगे तो ये आप जेल से निकाल दीजिएगा कि मिर्जा इकबाल खामोश होगा। मिर्जा इकबाल ने अब ये तहिया कर रखा है और उसके सर पे कफन बांध रखा है कि आप ये सोचे नहीं, अगर मैं निवास खान के सामने खड़ा हुआ हूं तो आप मेरे लिए कोई चीज नहीं है। आप ये कभी ना सोचें। मुझे इस बात का फख्र है, यहाँ पे जो मेरी बिजनेस कम्युनिटी बैठी हुई है और मेरे यहाँ पे जो मुतासरीन या फैक्ट्री या रहायशी बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह वो मेरा इस मामले में साथ देंगे और उनके लिए सबसे पहले मैं आगे खड़ा हूंगा। अगर इससे पहले 2 या 3 दफा मुझ पे जो भी मुझसे हुआ, जो मुझसे किया गया, वो आप सब दोस्तों को इल्म है। मैं ज्यादा आपका वक्त इसलिए नहीं लेना चाहता, मेरे दिल में बहुत ज्यादा बातें हैं। मैं सिर्फ इसी का अहाता करूंगा। ये मेरे MC के जवानों, जो आप इलेक्शन के लिए वोट मांग रहे हैं, खुदारा जो बातें मैं कर रहा हूं ये समझे कि आज मैं आपका दोस्त हूं, आज आपका मैं भाई हूं, आज साथी हूं, लेकिन आपके इलेक्ट होने के बाद अगर आपने इसमें किसी चीज की चेंजिंग की तो ये समझना सबसे पहला मैं आपका यहाँ मलिक दीन बनूंगा। और मैं ये आपको बता देता हूँ, आप कान खोल के सुन लीजिएगा, ये अवाम इसलिए यहाँ नहीं बैठे हुए कि आप बहुत प्यारे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आपकी क़यादत में कोई मेजर या कर्नल इसमें शामिल नहीं है, तमाम मिडिल क्लास के लोग शामिल हैं, लेकिन इसी बात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा क्योंकि मेरे दिल में काफ़ी जज्बात हैं। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा, आप भाइयों से गुजारिश है, दरख्वास्त है कि आप निकलें 21 तारीख को उस मैदान में अपना हक, अपना वो कागज़ का पर्ची जो है वो उसको हमारे लिए इस्तेमाल करें और ये लोग बिन करके वहाँ पे बैठे। उसके बाद फिर हमारी इनसे बातें होंगी। आज हमारी बातें कदरे कम हैं, कदरे कम सख्त हैं, लेकिन कल हमारी बातें इससे भी ज्यादा सख्त होंगी। और मैं इस मामले में सबसे पहले रहायशियों, मुतासरीन और जो बिजनेस कम्युनिटी है उनका साथ दूंगा, इस MC का कभी भी साथ नहीं दूंगा। और आइंदा के लिए मेरी आप सब भाइयों से दरख्वास्त है कि आप सारे मिल के निकले, अपना उस 21 तारीख को वोट जो है वहां डालें। आप वोट डालेंगे तब मैं ये आपके सामने जो अल्फाज इनको कह रहा हूँ उनके लिए हम लोग इनके सामने शीशा फलाई दीवार बन के खड़े हो सकते हैं। अगर हम उनके खिलाफ शीशा फलाई दीवार बंद हो सकते हैं तो आप मत घबराइए, मत ये सोचिए कि आपके सामने कोई खड़ा नहीं होगा। सबसे पहले ये पूरी आवाम मेरे साथ होगी और मैं बिल्कुल इस चीज का मनोगान हर अल्फाज का जो हमने कहा वो हमने पूरा करना है। यहाँ पे मैं छोटे से एक और बात कहते हुए उनसे कहा था कि आप इस बात का भी अनाउंस करें कि यहाँ तमाम जितनी सोलर अपने स्ट्रीट लाइट है उनको आप कोशिश करें कि इमीडिएट उनको सोलर पे ले आएं। और मैं इनको यही कहूँगा कि अपने मंजूर में इसको भी ऐड कर लें। बाकी यहाँ पे रहे आप कोशिश करें कि वो भी सोलर पे आ जाए, तो आए दिन तो यहाँ पे पानी का मसला, बिजली का मसला रहता है, वो भी हल हो जाए। लिहाजा मैं अब आप भाइयों से दरख्वास्त करूंगा कि क्या आप ये चाहते हैं जो मैं कह रहा हूँ, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? अगर आप इत्तेफाक करते हैं बिजनेस कम्युनिटी रहायशी ये जो यहाँ के मुतासरीन हैं, तो मैं बिल्कुल हम वक्त आपका एक अपना सा गुलाम और अपना सा सिपाही बन के आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आज भी मैं इनके लिए, उनके लिए जहाँ तक कुछ हो सकता है मैं इंशाल्लाह इनका साथ के लिए मैंने ऐलान किया हुआ है और मैं करूँगा। ये इनका ग्रुप नहीं है, आपका ग्रुप है, आपने अपने लिए मेहनत कर ली है। खुदारा 21 को लाजमी निकलिएगा और इस बात का इनको ताकि यकीन हो जाए और हम लोग इनको सीटों पे बिठा के वहाँ से सुरखरू हो। उसके बाद फिर हमारा काम है, फिर इनका एहतसाब शुरू होना है। इसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगर कोई ऐसी बात जज्बाती निकल गई हो उसके लिए मैं माजरत खाऊँ, लेकिन सच कहना पड़ता है, सच कड़वा है, ज़रूर कहना पड़ता है। मुझे पता है यहाँ सच को सच कहने वाले लोग कम हैं, लेकिन झूठ को सच समझने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। खुदारा इससे निकलिए, सच को सच मानिए, झूठ को झूठ मानिए। जान आपकी खुदा ने लेनी है,
किसी एमसे की मेंबर या किसी माफिया के ग्रुप, किसी बंदे ने आपकी जान नहीं लेनी। एक दफा पैदा हुए, एक दफा ही आपने मरना है। लिहाजा खुदारा अपनी सफर को दुरुस्त करें, इसमें इत्तेहाद पैदा करें, अपने किए हुए जो वादे हैं उन पे कायम रहिएगा खुदारा। और आप दोस्तों से दोबारा इस बात की दरख्वास्त है कि हमारा साथ दीजिए ताकि हम लोग इनसे बाद में इनका एहतसाब कर सकें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।